It has been over a week since the Supreme Court hit the pause button on the new UGC equity regulations, calling them vague and warning of their dangerous impact, effectively staying a mandate that was supposed to be a new blueprint for ensuring social justice on the Indian campuses. The stay came in followed by a week-long protest of the general category students who argued that by defining the victims strictly as the SC, ST and the OBC, the state is institutionalizing the weapon of discrimination against the general category students. Now, the stay may have appeared to ease the immediate storm and the tensions built around the new equity regulations. But at the very same time, the conversations at the campus in the higher education institution continue to revolve around the change that the students want to see from these new regulations when they return. In a battle to eradicate the age-old discrimination at the campus, has the UGC by accident created more divide at the campus, or is this stay just delaying a much-needed structural overhaul? What is the ground reality? We track the pulse of the campus at Meerut's Chaudhary Charan Singh University. While the headlines are dominated by general category protest against the UGC, our quest was more specific. Do the new regulations actually serve the students they claim to protect? We spoke to OBC and other reserved category students to find out if the law truly meets their expectations, or if the silence makes a different story. On the other side, the marginalized groups too have been protesting. Their demands, the stay to be lifted and the guidelines to be implemented immediately. For the first time, the inclusion of the OBCs has also happened, the group to be given protection against on-campus discrimination. They are also using this protest as a momentum to demand a Rohit Act, which is a central law specifically designed to give protection to the SC, ST, OBCs group against the on-campus discrimination. मेरे हिसाब से तो देखिए यूसीसी एक्ट लागू होना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं खुद दलित कैटेगरी से हूँ, तो डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ भी हुआ है और होता हुआ आ रहा है। अगर हम कहीं भी चले जाते हैं ना, तो ये चीज़ हमारे साथ होती ही है। अब स्कूल में चले जाइए या फिर कहीं कोचिंग में जाइए, तो ये चीज़ देखने को मिलती है कि एक तरीके से जैसे मतलब कि अलग कर दिया जाता है समाज से। पर्सनली भी मैं डिप्रेशन में भी रही थी। मतलब मेरे फादर हैं, यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं, तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं कई महीने तक, मेरी एज क्या थी, 14 साल थी। मैं 14 साल से लेकर आज तक मतलब इस कानून में ऐसा कानून चाहती थी कि जो हम लोगों को एक प्रोटेक्ट करे, जो हम लोगों को समाज में एक बराबरी का अधिकार दे। तो आज 7 साल बाद अगर ऐसा कुछ कानून आ रहा है, तो मैं तो उसके समर्थन में रहूँगी। ये जो एक्ट है ना, वो केवल और केवल ओबीसी और एससी एसटी को इन्वॉल्व नहीं करता, वुमेन को भी इंक्लूड करता है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को भी इंक्लूड करता है। तो ये काफ़ी इंक्लूसिव तो है ही। और जैसे वो बोल रहे थे कि 12 तक बाइंडिंग नहीं था, लेकिन अगर अब बाइंडिंग हो रहा है तो उसमें क्या इशू है? और डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी साथ हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशंस फेस कर रहे हैं, तो ये विजिबल फॉर्म में नहीं है कि हाँ अब अनटचेबल नहीं है कि आप मेरे साथ नहीं बैठोगे, खाओगे नहीं। लेकिन जब कोई स्टूडेंट पूछता है कि तेरा कितने नंबर पे हुआ और मेरा कितने नंबर पे हुआ, तो इट शोज़ कि आप वो पूछना चाह रहे हैं कि भाई तू कोटा से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैम, मैंने दोनों तरह की चीज़ें देखी हैं। चूँकि स्टेट लेवल पे मैं ओबीसी में आती हूँ और सेंट्रल लेवल पे मैं जनरल में आती हूँ, तो मैं देख सकती हूँ कि वुमेन, ये जनरल और एससी एसटी की बात नहीं है, ये बीइंग अ वुमेन भी बात है कि आप किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन फील कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर ये रेगुलेशंस आएंगी, ये इम्प्लीमेंट की जाएंगी, अगर आपने रेगुलेशंस देखी हैं एंड आई एम श्योर आपने देखा होगा, तो उसकी वजह से देयर इज़ गोइंग टू बी अ बेटर डे इन विच वी वोंट फील एंड वी वोंट सी इतना डिस्क्रिमिनेशन, या ये जो इनविजिबल फॉर्म्स आपने मुझे बताई हैं? यस मैम, देखो लूप होल्स तो हैं,
ये बात बिल्कुल सही है कि मिसयूज़ तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। अब तक डॉरी जैसी चीज़ें होती थी, उसका भी मिसयूज़ होता था, लेकिन मिसयूज़ होने के डर से हम ऐसा तो नहीं कि लॉ बनाना छोड़ दें। हाँ, हम कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स और ऐड कर सकते हैं कि हाँ, चीज़ें बेकार तरीके से ना जाएं, गलत डायरेक्शन में ना जाएं, लेकिन कम्प्लीटली अवॉइड कर देना इन चीज़ों को, ये तो सही नहीं है। तो ज़रूरत थी। हाँ, ज़रूरत थी, और लेकिन चेंजेस, हाँ, स्कोप है कि अभी थोड़ी और चीज़ें सही हो सकती हैं, और ज़्यादा आप लूप होल्स को फाइंड आउट करके कि मिसयूज़ ना हो। बट हाँ, आप कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते कि हाँ, इसे हटा देना चाहिए या भाई विरोध करने लग जाओ। नहीं, आप डिमांड कर सकते हैं कि और स्ट्रॉन्ग किया जाए और चीज़ें ठीक की जाएं। Now speak to these reserved category students and essentially understand from them about which side of the regulations did really hurt them. And I am being joined by few of these students. आप मुझे अपना नाम बताइए, और मैं आपसे समझना चाहती हूँ, इधर यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस में जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जितना प्रदर्शन हुआ है यूजीसी को लेकर, और जिस तरीके से कुछ वर्गों ने ये भी बोला है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जनरल कैटेगरी के, उनके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट। देखिए, यूजीसी की जो गाइडलाइन है 2012 की जो है गाइडलाइन को जो है उठा के जो है 2026 में लागू करा है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट जो है बढ़ाए गए। जिस हिसाब से जो है विश्वविद्यालयों के अंदर जाति और भेदभाव को लेकर जो है मामला संज्ञान में आया है, उसी हिसाब से जो है सरकार ने जो है इस पर ये मानो कि पिछले 5 सालों से 118% की भेदभाव और जातिवाद को लेकर जो है वृद्धि हुई है। उसके बाद इस कानून को जो है बनाया गया है। मैं आपको बता दूं, ओबीसी, SC, ST, जनरल, दिव्यांग, महिला, और जनरल में भी आपको बता दूं EBS, जो आपके आर्थिक जो है कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति हैं, उन सभी को इसमें शामिल करा गया है। देखिए, यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आपको मैं बता दूं, चाहे वो राज्य की यूनिवर्सिटी हो या जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सबके अंदर ज़्यादातर भेदभाव देखने को मिलता है। उसका जीता जागता उदाहरण देखो, आपको बता दूं, रोहित वेमुला, नजीब जंग, आपके ये तो हाईलाइट मुद्दे हैं जो सबको पता है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से जातिवाद भेदभाव को लेकर, क्या हमें लग नहीं रहा कि वर्तमान के हालात हैं कि जो जातिवाद और भेदभाव नहीं है, हर जगह है। आप चाहे किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति देख लो, या आउटसोर्सिंग जो है ये भर्तियाँ देख लो, या कोई भी किसी तरह की जो है मामले को देख लो, सब में जाति भेदभाव हर जगह देखने को मिलता है। तो ये कड़ा कानून जो है, जहाँ तक मेरा मानना है, कड़ा कानून जो है जिस तरह से बनाया गया है, इसका जो है पूर्ण जोर से जिस तरह से विरोध हो रहा है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए था। वो मैं आपको बता दूं, जनरल किस वजह से विरोध कर रहा है। जनरल इस वजह से विरोध कर रहा है क्योंकि 2 या 3 कैटेगरी जो हैं उनको जो है अलग कर दिया गया है। उनको एक धड़े को ये कह दिया गया है एक तरीके से कि जो है ये पूर्ण तरीके से अपराधी हैं, और पूर्ण तरीके से अपराधी उनको जो है मान लिया गया है। उनका मानना ये है। सबसे बड़ी दुविधा ये भी है कि अगर एक कोई फॉल्स केस होता है, तो आपने बताया कि हाँ, डिस्क्रिमिनेशन बहुत हो रहा है और जिस तरीके से वृद्धि हुई है, तो अगर फॉल्स केस होता है तो कहाँ जाएगा एक अलग वर्ग, और कैंपस के अंदर वो उसके पास प्रोविजन नहीं है। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं आपको बता दूं, क्या ओबीसी, SC, ST या जो है अन्य जाति का अगर कोई जो है छात्र किसी के साथ भेदभाव करेगा, क्या उसके लिए पुलिस प्रशासन नहीं है? क्या ऐसा थोड़ी ना इस कानून के आने के बाद जो है उस पर कार्रवाई नहीं होगी? 100% सुनिश्चित है। अगर कोई अदर कास्ट का भी किसी के साथ भेदभाव करता है तो पुलिस प्रशासन उसके लिए है, वो उस पर सुनिश्चित है, कार्रवाई होगी। लेकिन इस कानून के हिसाब से जिस तरह से लागू कड़ी तरीके से करा गया है, ये इसमें जो है विरोध, मैं मानता हूं कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए। कोई भी नियम कानून या कोई भी चीज़ होती है, मान के चलो यूनिवर्सिटी में कुलपति या कोई भी नियम बनाए, ठीक है, या यूजीसी बनाए, उसके विरोध में और पक्ष में सभी लोग आते हैं। जो पक्ष में है वो तो कोर्ट में जाकर रिट दायर नहीं करेगा कि हम जो है इसके पक्ष में है, आप इसे जो है लागू कर दो, क्योंकि वो पहले से ही लागू हो चुकी है चीज़। तो जो उसके विरोध में, वो लोग अपने उसमें कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाने के बाद में कोर्ट का डिसीजन एक ही है, कोर्ट तो वही करेगा कि उस पर जो रोक लगा देगा, उसके बाद में उसकी सुनवाई होएगी। आगे निर्णय जो भी होगा तो उसमें थोड़े बदलाव करके फिर उसे लागू कर देगा या उसे ख़त्म कर देगा। नहीं, लेकिन अगर नहीं होगा लागू, 2026 की जितनी गाइडलाइंस है वो लागू नहीं होंगी यूजीसी की, तो जिन चीज़ों के लिए आप प्रोटेक्शन मिल जाती है आपको, और वो नहीं मिलेगी, और आपके हिसाब से ये कैसा देखेंगे? नाइंसाफ़ी होगी या क्या आगे की प्रतिक्रिया है? नहीं, आप देखेंगे ना कि यूजीसी ने जो नियम बनाए उसमें कमेटी में कितने लोग स्वर्ण थे, कितने लोग दलित थे, कितने लोग ओबीसी थे, ठीक है। उन्होंने सभी ने सोच के पूरे देश में कि हाँ, इनके साथ में शोषण हो रहा है विश्वविद्यालयों में, चाहे वो इंटरनल के, प्रैक्टिकल के, या उसके PhD के आधार पे हो, या
एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पे और सभी तरह पे उन्हें लगा ना कि हाँ शोषण हो रहा है जातिगत आधार पे या विकलांग के आधार पे, महिला होने के आधार पे, तो उन्होंने उसी वजह से तो ये नियम बनाए। अगर नियम बनाए हैं और ये कोर्ट मना कर देते हैं कि इन पर जो है रोक लगेगी, ये लागू नहीं होंगे, तो फिर तो नाइंसाफ़ी है ही ना। Joining me for a conversation right now is Sai Deepak, Supreme Court advocate. So thank you very much for joining us on this very important subject where we are trying to understand how exactly the UGC new guidelines have further intensified the divide as opposed to what it really meant to create an impact. And in the larger sense, what you have seen after 2012 and 2019 and then in the recent past year happening as an impact, what are your first conclusions coming up from? First of all, I don't think anybody is trying to justify or defend discrimination. I don't think any section of the society is trying to do that. The only thing is the manner in which these regulations have been put together and the way they read, it could actually have the effect of creating a problem where perhaps not much of a problem exists. And there's a reason for saying this. The 2012 UGC regulations were enacted pursuant to a Thorat Committee report of 2007. If you look at the committee report, across the board, it speaks of number of cases of discrimination in their thousands, and I think this data was provided by close to about 1200 institutions and odd. In all those institutions put together, the total percentage of cases falling under the bracket of discrimination is actually very, very minuscule. Out of those cases, how many are caste-based discrimination, you don't know, because it puts everything under the basket of discrimination. Not all of them could be under the basket of caste discrimination. So this is the first issue. This led to the regulations of 2012. Now the regulations of 2012 in some parts were better than the regulations of 2026 and in some parts were as bad or worse compared to the regulations of 2026. The reason why those regulations perhaps lacked teeth is because it had no consequence if somebody is found guilty of discrimination. In the sense, any equity committee that is set up there, what will it do is unclear. And second, the establishment of an equity committee was not mandatory under the 2012 regulation. The 2026 regulation actually has some of those, let's say, aspects where it makes the presence of a committee or the constitution of such a committee mandatory. Okay. Now, what is the divide between 12 and 26 and what happened in between? 2019 is when the cases of Rohit Vemula and Payal Tadvi are escalated to the court, I think in writ petition 1149 of 2019. Now, the court decides to take up that issue because the petitioners basically said that these deaths, which are unfortunate, are because of discrimination on campuses and because of poor implementation of the 2012 regulations. Therefore, according to them, if the 2012 regulations had been implemented, these deaths may not have occurred. You have a policy and you say, what will happen if somebody, let's say, pursues the policy of discrimination? And you say this applies across the board. Nobody will have a problem with it. But instead you say, there is a presumption in favor of one category of people and there is a presumption against certain categories of people. The moment you say that, you are going to hand weapons to people in terms of legal tools for them to settle personal scores. कल अगर कोई क्रिकेट टीम में सेलेक्ट नहीं होता है, we don't know what they will say. Let's say two friends are fighting, or let's say two groups of students are fighting because of political differences. Now caste will enter that particular situation. During student elections, people have been fighting with each other. Now you'll have caste as a weapon because this is going to be an even more serious weapon in their hands, where they will lodge cases against each other on this kind of. But there is a contrary argument. Which is was caste never existing otherwise in the ecosystem? Super. Then in which case, then you go with a plain and simple discrimination provision. I don't have a problem with it. Nobody is saying that nobody should have any remedy against discrimination. That's not the idea at all. I'm just saying you don't say that the system will be loaded in favor of one and loaded against another. That's it. And second, this definition of caste discrimination, which has been expanded to include OBCs as well,
I'm sorry to say it's a very surreptitious way of going about it, for a good reason, that OBC's recognition for the purposes of reservation is not on the basis of historical injustice. It is on the basis of lack of representation in certain areas. Therefore, you can't equate, let's say, both sets of categories and now say OBCs are the new SC/STs. You don't have the equivalent of an SC/ST for the OBCs, right? There's a reason for it. So they're trying to do the SC/STification of the OBC. Exactly. Right. So what we're saying is this, when you do, it only worsens the existing situation. If you look at how we are gradually addressing this issue, it is going to come into conflict with our aspirations of becoming an innovation superpower. ये होगा ही नहीं. But do you then think that the stay has done some course correction? Stay has not corrected any course, it has stopped the damage which is already done. That's it. Course correction hoga ki nahi hoga, that will be decided only after the judgment. We don't know. But there is no such, in the response to the stay, the anger has not reduced at all. What we have also because we would understood. like to know what is going to be the position of the government, and the reply is going to file to the petitions. So what is the actual legal way to also address this in a more informed manner? Because there are many grey areas, Fair as you say. There's a simpler issue to do this. If you fight this battle in a court of law, ये और भी problematic हो जाएगा. Because everybody will hurl allegations against each other. And the government is also putting itself in a particularly thankless position by landing this matter in court. The simpler way to do it is roll this back. जो 2025 का आपका draft regulation है, you float that for comments from all stakeholders. In the meantime, 2012 regulations coupled with some of the safeguards that the Supreme Court came out with, either in the case of the SC/ST Atrocity Act or the safeguards proposed in the draft 2025 regulations, you use them under the power of the Supreme Court under Article 142. Why? Until the Prevention of Sexual Harassment Law came into existence, the court was following the Vishaka guidelines. Yes. So under 142, those were the guidelines that were being followed. I am saying don't bring back 2012, don't implement 2026, use 2025 along with Article 142, use it for now as a temporary measure. In the meantime, you have conversations. The notification on January 13 did not just propose the constitution of the new committees, but it also ignited an era of constituting what could be understood as caste-based discrimination on the campus. But here's the thing, the loudest outcry did not come from those the law was meant to protect, but from those general category students who felt that UGC has painted a target on their back. Among the power corridors and across social media discourse, the anger is palpable. I would say there are two opinions. One is of the general students who claim to be, and other is OBC and SC/ST. So the points of general students are very concerned. वो ये बोल रहे हैं कि अगर इसका मिसयूज हुआ तो आप क्या करेंगे, और ऐसा ढेर सारे केसेस में आया है. और इसके ठीक विपरीत OBC और SC स्टूडेंट की बात है कि वो बोलते हैं कि हाँ, हमें अगर ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं तो हम उस पर कैसे कमेंट करें. कंसर्न्स दोनों अच्छे हैं, दोनों सही हैं. मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ये सारा का सारा प्रॉब्लम सिर्फ एक क्लॉज से हट सकता था कि अगर आप उसमें एक क्लॉज डाल देते कि हाँ, अगर मिसयूज होगा, अगर प्रूवन मिसयूज होगा तो हम आपके अगेंस्ट ले लेंगे. ये कंसर्न है जनरल कैटेगरी का. जब आप बात कर रहे हैं वन गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट 2047, आप देखिए कि उनका विज़न कितना बड़ा है, लेकिन उनको सिर्फ ये इतनी छोटी सी बात नहीं दिख रही है. सिर्फ उसका कारण है पॉलिटिक्स. वोट बैंक के लिए उनको ये छोटी सी चीज़ नहीं दिख रही कि एक वर्ग जैसे ओबीसी को उन्होंने इंक्लूड किया. मैं आपको बताऊं, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के रिपोर्ट के मुताबिक दे आर नॉट द मार्जिनल्स इन यूनिवर्सिटीज़. 60% पॉपुलेशन आर फ्रॉम द SC/ST एंड OBC. 1.63 करोड़ पीपल आर फ्रॉम OBC. So they are not marginalized, but government talking about marginal groups. I am saying कि they are not marginals.
You think it was politically motivated? Yeah, it was politically motivated. Another thing that I want to ask you is that there has been enough talk about how the privileges have been only hoarded by the general category people, and their reservations were initially brought in because the privilege dissemination was very unequal. So when we speak of as he has also spoken about that, when we speak of the rights, the equity, तो इसमें हमेशा एक तर्क जरूर आता है कि जो रिजर्वेशन का टॉपिक था वो अपलिफ्टमेंट के लिए था। तो अब अगर हम अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं तो यूजीसी के जो रेगुलेशंस आए हैं वो इसी पर्सपेक्टिव से आए हैं कि अपलिफ्टमेंट को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो इसमें तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि फिर प्रोटेस्ट होता। मैम अपलिफ्टमेंट की आप बात कर रही हैं, अपलिफ्टमेंट के लिए बाबा साहब ने ना 10 साल के लिए रिजर्वेशन के लिए बोला था, और मैक्सिमम एक्सटेंड के लिए बाबा साहब ने जो बोला था वो बोला था कि है ना आप इसको 10 साल के लिए और कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 20 साल में उनका मानना था कि रिजर्वेशन खत्म हो जाना है। उसके बाद भी रिजर्वेशन खत्म कर देना उनका ये था कि रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए। वो अगर हो तो इकोनॉमिकली हो, कि इकोनॉमिक बैकवर्ड जो पीपल है उनके लिए हो। दूसरी पॉवर्टी बेसिस पे भी होना चाहिए कि गरीब के तक पे देखा मैम, जाए। हमेशा से एक पर्सपेक्टिव चल रहा है कि है ना सब संसाधनों पे है ना, सब रिसोर्सेज पे है ना अपर कास्ट का होल्ड है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, बहुत जगह ऐसी है कि मैं अगर प्राचीन इतिहास भी उठा करके देखूं तो राजा हरिश्चंद्र हुए, राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले एक डोम राजा हुए जो कि जिनके कारण से वो है ना एक शमशान घाट के द्वारपाल भी बने। तब बताओ एक डोम राजा कैसे एक चक्रवर्ती सम्राट को कैसे खरीद सकता है? मतलब कि ऐसा तो हुआ नहीं है कभी भी कि रिसोर्सेज इतना वो एक जगह एक्यूमुलेटेड रहा हो। बहुत माइथोलॉजी पर्सपेक्टिव से डाल के नहीं मैम, माइथोलॉजी मैम इट्स नॉट अ माइथोलॉजी, इट्स अ हिस्ट्री। माइथोलॉजी इज अ रॉन्ग वर्ड। वो कहीं से ही मिथ नहीं है। आप अगर आप किसी चीज को प्रूव नहीं कर पा रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आपका पॉइंट ये है कि देयर हैज टू बी अ लिमिट टू इवन द अपलिफ्टमेंट, और जो हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन का पॉइंट लाया गया था कि अब उसका मिसयूज हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है मैम, ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कि है ना रिजर्वेशन का भी मिसयूज करते हैं, ऊपर से जो एट्रोसिटीज एक्ट आया उसका भी मिसयूज करते हैं। अब ये तीसरी चीज हम पे जनरल कैटेगरी वालों पे और गाज गिर रही थी, यूजीसी रेगुलेशन आया था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद नाउ यू फील सेटिस्फाइड? नो मैम, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। अभी इस पे है ना केवल है ना स्टे आया है। हम चाहते हैं कि पूरी तरह रोल बैक हो ये, और जैसे पहले एंटी रैगिंग आया जो सभी स्टूडेंट्स के लिए था, जो स्टूडेंट्स में यूनिटी बना के रखने की बात करता है और वो किसी भी तरह का हैरेसमेंट नहीं वो प्रमोट करता है, हम इस तरह का कोई रूल चाहते हैं। तो ऐसा कोई आता है तो हम उसका वेलकम करेंगे, लेकिन इसका हम बिल्कुल कंडेम करते हैं और बिल्कुल सिरे से नकार रहे हैं। इस जैसे इस एक्ट में दिखाया गया कि इसके ऑब्जेक्टिव में तो बता दिया गया है कि रिलीजन, रेस और जेंडर, प्लेस, बर्थ, कास्ट एंड डिसेबिलिटी के नाम पे इसको मान लिया गया है। लेकिन अगर मैं इसकी डेफिनेशन बात करूं तो जो कि सेक्शन 3 के क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में बताया गया, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली on the basis of caste and tribe against the member of only scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes। अब इसमें क्या होगा कि हम जनरल कैटेगरी को इसमें ये है ना सीधा इसका ये मतलब निकल रहा है कि जनरल कैटेगरी को आप बोल दे रहे हो कि है ना आप ही डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, क्योंकि उसी को यहाँ मेंशन नहीं किया गया, बाकी तीनों कास्ट का यहाँ मेंशन कर दिया गया है। उन्हीं का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और करने वाला बच्चा कौन है? जो बच्चा है वही डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। अभी आपने बात करी अपलिफ्टमेंट की बात करी, तो मैम ये जो गैजेट है ये इसकी बात नहीं करता। ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको रोकने के लिए बनाया गया है। तो इसमें हम अपलिफ्टमेंट की बात ही नहीं कर सकते। उसके लिए और सारे जो कानून रिजर्वेशन मिल रहा है उसके माध्यम से लोग आ रहे हैं। जब हमने प्रोटेस्ट के बारे में ठाना, हमने एक ग्रुप बनाया कि जिसके माध्यम से लोग जुड़े हमसे जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं इसके खिलाफ में। उसके बाद एक ग्रुप इसके समर्थन में बना कि इस गाइडलाइन के समर्थन में भी कुछ लोग खड़े हुए। उस ग्रुप में मेरे को कोई गलती से जोड़ा, अभी मैं आपको सारा दिखा दूंगा। उस ग्रुप में किसी ने गलती से जोड़ा, उसके बाद लोग पहचानते हैं क्योंकि मैं वैसे भी इसमें थोड़ा पॉलिटिकली एक्टिव हूँ यहाँ पे। तो उसमें से एक लड़का ये कह रहा है कि मेरा नाम लेके नवीन पांडे जी का इस ग्रुप में स्वागत हो। उसके बाद इस पर जब टिप्पणी आगे बढ़ती गई, कोई बोला ये धर्म सम्राट हैं, ये वो है, ठीक है। उसके बाद कोई कह रहा है कि हमारे तो धर्म सम्राट मतलब हमारे कृष्ण जी थे और उनका चना भी कोई चुरा के खा ले गया, ये वो ले गया। तो एक तरह से वो सुदामा मतलब जो है वो हमारे वर्ग से आते हैं, उनके तरफ इशारा करके ये जो डिस्क्रिमिनेशन भाव पैदा करा गया। अगर इसी प्रोवोकेशन में मैं कुछ अगर बोलता या कुछ बात बढ़ जाती तो बाद में हमारे खिलाफ अगेंस्ट कंप्लेन हो जाता, फिर ये मुद्दा भी काउंट होता कि ये देखिए 118% बढ़ा है, जो 376 कितने केसेज है उसमें एक ये भी काउंट हो सकता था। आप एक चीज़ बताइए मैम कि अगर आप SC/ST से बिलोंग करती हैं, आप कोई कंप्लेंट लॉन्च करती हैं, अगर आपका कंप्लेन सुनने वाला भी आप ही के कास्ट से हो, तो इसमें क्या हम कह सकते हैं? बायस तो हो सकता है। बायसनेस इसमें हो सकता है। और हम इसमें क्या कह सकते हैं कि वो डिसीजन जो है फेयर हो पाएगा। जब आप उसमें इक्विटी कमेटी की बात किए हैं, इक्विटी एम्बेसडर बनाए हैं,
इक्विटी ऑम्बड्सपर्सन भी बनाए हैं और उसमें सारा का सारा ये जो भी कमेटी बनाई गई है इसमें कहा गया है कि रिप्रेजेंटेशन होगा किसका, SC ST और OBC का। आप बताइए कि इसमें कहाँ तक फेयर जस्टिस हो पाएगा। जस्टिस तो क्या इससे ये भी एक आइडिया लगता है कि हम जेंडर का इसलिए भी नहीं ला रहे हैं क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया कि वो अगेंस्ट यस बिल्कुल ऐसा इस रेगुलेशन के तहत ऐसा प्रिजम्पशन मान लिया गया है कि केवल और केवल जो सप्रेशर हैं यहाँ पे केवल और केवल हो सकते हैं कौन, ना तो जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लोग। The Supreme Court has frozen the new rules, effectively putting a limbo period over the campuses across India until the next big hearing. In the initial proceedings, the Chief Justice of India raised a haunting question. Is India regressing in its journey towards a casteless society? Now, the next big date, the D-Day, is set on March 19. The government and the UGC have 6 weeks to defend the constitutional validity of Clause 3C. The definition of caste-based discrimination that critics argue does not just only miss the mark, but also erases the struggle. Now, the big question is, will the Supreme Court demand a total redraft or the regulations survive the ultimate judicial scrutiny? This is Simran with video journalist Chintan for CNN News 18.